آج ویو 360 میں سندھ کے علاقے رتوڈیرو میں HIV سے متاثرہ بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ بلوچستان میں HIV ایڈز سے متعلق آگہی بڑھنے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ I am focusing on humanity. I'm bringing humanity together and this is my mission. اور غریبوں کو مفت کھانا کھلانے والا واشنگٹن کا پاکستانی۔ دسمبر کا آغاز دنیا بھر میں HIV ایڈز کے بارے میں آگہی کے دن سے ہوتا ہے۔ لاڑکانہ میں HIV کے وبا سے کیا سیکھا گیا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ پاکستان میں اس سال HIV کے حوالے سے صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کا علاقہ رتوڈیرو سپاٹ لائٹ میں آ گیا۔ مقامی میڈیا کی خبروں سے لاڑکانہ کی انتظامیہ کو علاقے میں HIV کے بڑھتے ہوئے کیسز کا علم ہوا۔ تب تک بچوں میں ایسے بخار کی اطلاعات بھی مل رہی تھیں جو علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ مئی میں اسکریننگ کیمپس لگائے گئے اور پھر یہ خوفناک حقیقت سامنے آئی کہ رتوڈیرو کے بچوں میں خاص طور پہ HIV وبا کی طرح پھیل چکا ہے۔ 25 اپریل سے 19 نومبر تک ضلع لاڑکانہ میں 37,000 سے زیادہ افراد کے خون کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ ان میں HIV کے 895 مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ بھاری اکثریت بچوں کی ہے جن کی تعداد تقریباً 750 ہے۔ ان بچوں کو ادویات تو دی جا رہی ہیں لیکن HIV ایڈز سے جڑے منفی رویوں کے باعث ان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان بھی لگ گیا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد ثاقب نے عالمی یوم ایڈز کے موقع پر رتوڈیرو کا رخ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ متاثرہ بچوں کے والدین کس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے رہائشی گلبہار شیخ اور اکرام فاطمہ ہیں۔ انہیں چند ماہ قبل ہی معلوم ہوا کہ ان کی پھول جیسی 2.5 سالہ بیٹی HIV کا شکار ہو چکی ہے۔ تشخیص ہوتے ہی والدین نے بیٹی کا علاج شروع کروا دیا، لیکن اکرام فاطمہ اپنی بچی کی بیماری سے زیادہ اس سے جڑے معاشرتی رویوں سے پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ میں تو اپنی بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتی ہوں اور کبھی کسی پڑوس میں یا کوئی بھی شادی بیاہ میں جاتی ہوں نا تو یہ کہتے ہیں یہ ہے بیمار، تو میں کہتی ہوں آپ کو یہ لگتا ہے بیمار ہے؟ یہ تو بیمار نہیں ہے، ہماری سوچ بیمار ہے، یہ بیمار نہیں ہے، آپ ایسا پھر مت کہیے گا۔ HIV کا شکار ہونے والے بیشتر افراد اور ان کے اہل خانہ ایسے منفی معاشرتی رویوں کا تقریباً روزانہ سامنا کرتے ہیں۔ تعلقہ رتوڈیرو کے گاؤں سبحانی خان شر کے رہائشی شہزادو خان شر کا کہنا ہے کہ ان کے 4 سالہ بچے میں HIV کی تشخیص کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے گاؤں چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا۔ سارے گاؤں والے نفرت کرتے ہیں تو بھائی اس کے گھر میں بیماری ہیں، خطرناک بیماری ہیں، وہ وچرتے ہیں، دوسرے کو بھی ہاتھ ملانے سے وچرتے ہیں، گڈ کھانے سے وچرتے ہیں، وہ بہت نفرت کرتے ہیں۔ صرف بیماری والے بچوں کو فیس ملے ہر مہینے۔ اسی گاؤں کی ایک اور خاتون جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اپنی بیٹی کے اس مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے ایک بار خودکشی کا بھی سوچا۔ میں تو یہ گاؤں بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی، میں امی کے گھر جاتی تھی تو میری بھابھی تھی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی تھی، کہتے تھے یہ کیوں آئی ہے، اس کی بیٹی کو بیماری ہے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیماری ہمیں لگ جائیں گی۔ پہلے تو اس کے بہن بھائی کو اسکول میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، میں تو خودکشی کر رہی تھی۔ اس کو مارنے کو تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا خود کو بس مار ڈالوں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن مایوسی کے ان اندھیروں میں کچھ روشنی کے بہار شیخ اور ان کی بیوی جن کی اپنی بیٹی HIV کا شکار ہے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کی بلا معاوضہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ جتنی میری جیب اجازت دیتی ہے کہ میں کھلونے یا گرم کپڑے، سردیاں ہیں گرم کپڑے لے کے جاتا ہوں گاؤں میں، جب ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ پھر میں وہاں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، وہ پھر میری بات بھی سنتے ہیں، تو پھر میں نے کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ بھائی ان کو پیار کی ضرورت ہے۔ لاڑکانہ میں HIV کی وبا سے لڑنے کے لیے حکومت سندھ نے 1 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے، جبکہ ہنگامی بنیادوں پر اسکریننگ کٹس اور بچوں کے لیے خصوصی ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ صرف اس خوف سے خون کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے کہ اگر مرض کی تصدیق ہو گئی تو ان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ HIV مریضوں کو بہتر علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ انہیں منفی معاشرتی رویوں سے بچانا بھی ایک اہم چیلنج ہے، جس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، رتوڈیرو، لاڑکانہ۔
रितुलेरो में HIV बड़े पैमाने पर पहली मर्तबा सामने नहीं आया। एड्स का सबब बनने वाला ये वायरस पहली बार इनफैक्ट 2003 में इलाके में सामने आया था। तब सिरिंज के जरिए नशा करने वाले इसका शिकार हुए थे। फिर 2016 में बच्चों के वार्ड में 12 मरीजों में इसकी तशखीस हुई और उसी साल डायलिसिस के भी 206 मरीजों को ये मर्ज भी लाहक हो गया। रितुलेरो में जन्म लेने वाली सूरत हाल ने पाकिस्तान के तिब्बी निज़ाम की कुछ बड़ी खामियों की निशानदेही भी की है, जिनके बायस HIV जैसी खतरनाक वबा किसी भी इलाके में फैल सकती है। एक तो है कई मरीजों में एक ही सिरिंज का इस्तेमाल और दूसरा अस्पताल के कचरे को ठिकाने लगाने के गैर महफूज तरीके। हमने सुबह सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोर से पूछा कि इन मसाइल के सद्देबाब के लिए अब सिंध में क्या किया जा रहा है। प्रिवेंशन में हमने एक बड़ी मुहिम चलाई है IPC की, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की मुहिम। वो ना सिर्फ HIV के लिए बट अदर डिजीज़ के लिए भी है। उसमें हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ऑन हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल। दूसरा टियर इसमें ये है कि हम जो है पर्सनल है HR जो है हॉस्पिटल्स का, क्लिनिक्स का, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन। एंड वो जो है वो ट्रेनिंग्स में सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है उनकी, राइट फ्रॉम द स्वीपर टू द डॉक्टर। डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि उनकी प्रॉपर डिस्पोजल हो। इंसिनरेटर्स के तहत सारा हॉस्पिटल वेस्ट भी इंसिनरेटर्स में जाए और उसके लिए लाड़काना में हमने स्पेशली 4 इंसिनरेटर्स लगाए, दूसरी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में से इंसिनरेटर्स लगा रहे हैं। पाकिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का अंदाजा है कि मुल्क भर में HIV एड्स के मरीजों की तादाद कम से कम 1,65,000 है, लेकिन इलाज सिर्फ 20,000 के करीब मरीज ही करवा रहे हैं। पाकिस्तान में HIV के शिकार बेशतर अफराद ये भी नहीं जानते कि उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं। आगाही मुहिम के नतीजे में अब सूबा बलूचिस्तान में HIV के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब पहले के मुकाबले में ज्यादा बड़ी तादाद में इलाज के लिए सामने आ रहे हैं। तफसीलात दे रहे हैं मुर्तजा ज़हरी। असदुल्ला 4 साल तक कराची में मनशियात इस्तेमाल करते रहे, जहां नशे के आदि कई अफराद एक ही सिरिंज मिलकर इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे असदुल्ला एड्स के मर्ज में मुब्तला हो गए। हमको ऐसा पता लग गया हमसे खून जाता था, बस इसलिए हमने वो अस्पताल वाला ने बताया उधर जाओ BMC में, फिर हम इधर आए। हम जो इधर आए ना ये खून जाता था, हमको पता नहीं लगता था कौन सी बीमारी। फिर हम जो इधर आए अस्पताल में, फिर हमको पता लगा, वो बताया ये तुम्हारे को एड्स बीमारी। सूबाई एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आगाही बढ़ने के बायस अब पहले से ज्यादा मरीज इलाज के लिए सामने आ रहे हैं। ये पेशेंट रजिस्टर हो रहे हैं जो पहले नज़र नहीं आ रहे थे, जो आगे नहीं आते थे, उन्हीं माशरे के मनफी रवैयों की वजह से, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अब अवेयरनेस इतनी पैदा की जा रही है और लोगों में भी शऊर है, और जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनमें भी ये ज़्यादा आगाही आ गई है कि किन किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ ये मरीज आ सकते हैं और माशरे के कौन से रिस्की ग्रुप्स हैं जहां से ये पेशेंट ज़्यादा हमें पिक होते हैं। हुक्काम के मुताबिक मरीजों को मुफ्त अदवियात और काउंसलिंग फराम की जा रही है। इस वक्त सूबे में ज़ेर इलाज HIV एड्स के मरीजों की तादाद 1300 है, जिनमें से तकरीबन 1000 क्वेटा जबकि बाकी तुर्बत सेंटर में रजिस्टर्ड हैं। हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में HIV और एड्स के मरीजों की सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श तो नहीं है, मगर आगाही फैलाने से रवैये आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, जिससे मरीजों की बेहतर तरीके से मदद हो सकेगी। मुर्तजा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। 40 साल पहले जब एड्स के मरीज की निशानदेही हुई थी तो इसे मौत का परवाना समझा जाता था। मरीज के पास कुछ इंतहाई तकलीफदेह महीने ही। आज दुनिया भर में तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद HIV के साथ अद्वियात के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यह मर्ज अब भी खतरनाक जरूर है। एड्स के खिलाफ आलमी सतह पर जारी लड़ाई में हासिल होने वाली कुछ अहम पेशरफ्त के बारे में आज जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में लोग एड्स का दिन इस मकसद के लिए मनाते हैं कि इस मर्ज के टेस्ट्स और इससे तहफ़्फ़ुज़ पर शऊर उजागर किया जा सके, और माहिरीन कहते हैं कि एड्स से बचने का सादा तरीन तरीका यह है कि जिनसी ताल्लुक़ के दौरान कॉन्डम्स इस्तेमाल किए जाएं। दुनिया में माहिरीन ने पहली बार एड्स का दिन मुतारिफ करवाया तो उन्हें एहसास था कि ये दीगर अमराज की तरह नहीं है और ऐसा वायरस है जो दुनिया भर में फैल सकता है।
پال کٹاوا ایک ایسے ایڈز ایکٹیوسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اس مرض کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں ابتدائی دنوں میں وہیں پر تھا. میں وہیں تھا جب ہمیں اس مرض سے لڑنا تھا, اس کا مقابلہ کرنا تھا اور اپنے بہت سے پیاروں کو دفنانا تھا. ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی بھی اس لڑائی میں آغاز سے ہی شامل ہیں. انہوں نے HIV کے علاج کے لیے بہت کام کیا ہے اور اب یہ علاج اتنا مؤثر ہو چکا ہے کہ اگر مریض ایک دن میں محض دوا کی ایک گولی کھائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم کا وائرس کسی اور میں منتقل ہو جائے. فاؤچی کہتے ہیں کہ اس مرض کو ختم کرنا بہت آسان اور سادہ ہے. اگر دو چیزیں کی جائیں یعنی علاج اور بچاؤ, اور وہ جنہیں اس مرض کا خطرہ ہو سکتا ہے انہیں دوا دی جائے, اگر اس پر مکمل عمل کیا جائے تو اس وبائی مرض کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. ان ادویات کی وجہ سے HIV انفیکشن کے کیسز میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے. ایڈز سے ہونے والی ہلاکتوں میں 2004 سے اب تک 55% کمی ہو چکی ہے, لیکن اب بھی HIV کے 60% مریض ہی ادویات استعمال کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ HIV کا مرض دراصل رسوائی اور امتیازی سلوک کے ساتھ جڑا ہے. پال کواٹا NMAC نامی ایک تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں جو نسلی امتیاز اور صحت کے برابر حق کے لیے ایڈز کے خلاف کام کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ان جگہوں پر پھیلتا ہے جہاں لوگوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو افراد سفید فام نہیں ہیں ان پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ ہم جنس پرستوں پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے. اور تیسری بات, غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. امریکہ میں رہنے والے HIV کے بیشتر مریض غریب ہیں, جبکہ امریکہ سے باہر دیگر ملکوں میں زیادہ تر کم آمدنی والے افراد اس مرض سے متاثر ہیں. ٹین ایجرز اور نوجوانوں کو ہر جگہ اس مرض سے خطرہ ہے. ٹیسٹ کروانے اور طبی سہولیات تک ان لوگوں کی رسائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے فاؤچی کہتے ہیں کہ ہمیں بہترین ادویات کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہوگا. فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین پر ہونے والا کام امید افزا ہے, لیکن اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹس کیے جائیں اور جنہیں یہ مرض ہے ان کا علاج ہو, اور ایسے افراد کو ٹروواڈا دی جائے جنہیں اس مرض کا خطرہ ہو سکتا ہے. ساتھ ہی HIV کو ایک مرض کے طور پر دیکھا جائے, اسے سیاسی, اخلاقی یا سماجی مسئلہ نہ سمجھا جائے. کیرول پیئرسن کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ. جیسا کہ ہم نے بات کی, معاشرے کا منفی رویہ HIV اور ایڈز کے علاج کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اس سوچ کو بدلنے کے لیے یوگینڈا میں ہر سال عالمی یوم ایڈز سے پہلے فیشن اور حسن کا ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے, اور اس میں حصہ لیتے ہیں HIV سے متاثرہ نوجوان. یوگینڈا کی 6% آبادی HIV کی شکار ہے اور نئے مریضوں کی اکثریت کی عمر 25 سال سے کم ہے. ینگ پازیٹیوز نامی اس فیشن اور بیوٹی کانٹیسٹ کے ذریعے HIV سے متاثرہ افراد کو بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ بھی معاشرے کا فعال حصہ ہیں اور ان کی زندگی بھی اہمیت رکھتی ہے. کسی شخص میں HIV کی تصدیق کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ایڈز کا مرض لاحق ہو گیا ہے. ادویات کی مدد سے HIV کو ایڈز جیسے موذی مرض میں بدلنے سے روکا جا سکتا ہے. HIV غیر محفوظ جنسی تعلقات, آلودہ خون اور استعمال شدہ سرنجز اور بلیڈز کے ذریعے پھیلتا ہے, اس لیے احتیاط اس کے خلاف پہلی اور ایک بہت ہی مؤثر ڈھال ہے. اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں, ہمیشہ نئی سرنج اور جراثیم کش ادویات سے صاف کیا گیا بلیڈ استعمال کرنے پہ اصرار کریں, اور HIV ایڈز کے شکار افراد سے ڈرے نہیں. لاڑکانہ میں HIV کی وبا سے دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں پہ اعتماد بھی کم ہو رہا ہے. اس پر تفصیلی مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. پولیو ایک ایسا مرض ہے جو دنیا بھر سے ختم ہونے کے قریب ہے. افغانستان میں بھی اس کے کیسز کم ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. اس سال اب تک کم از کم 90 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کے شبہات دور کرنے کے لیے اب صوبہ خیبر پختونخوا میں مقامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے حجروں میں آگہی مہم چلائی جا رہی ہے. تفصیلات لے کے آئے ہیں عمر فاروق. موجودہ سال کے آغاز میں پشاور کے نواحی گاؤں ماشوخیل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جس میں قطرے پینے سے بچوں کے بے ہوش اور بیمار ہونے کی ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی. اس منظم پروپیگنڈے کی وجہ سے ملک بھر میں پولیو کی مہم رک گئی تھی. اس واقعے نے پولیو ورکرز کے کام کو مزید مشکل بنا دیا ہے. حالانکہ اس واقعے کے کافی ٹائم گزر گئے ہیں, کافی مہینے گزر گئے, لیکن پھر بھی یہ اسی واقعے کو کر رہے ہیں. تو لوگ پھر بھی, وہ چونکہ فیس بک تو میڈیا سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر بھی لوگوں کا وہی سوال ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. حالانکہ ہم نے اس کو کلیئر بھی کیا ہے کہ یہ مطلب سارا پروپیگنڈا تھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
इस वाक़े के बाद पोलियो प्रोग्राम ने इलाके में आगाही मुहिम का आगाज किया, जिसमें पोलियो टीम्स हुजरों में जाकर मकामी आबादी के सवालात सुनती हैं और उनके जवाब देती हैं। हुजरों में हम यही करते हैं कि यहाँ तो हर तबके के लोग आते हैं, फिर हम उसको, और आपको पता है कि पश्तून कल्चर में हुजरे का एक रोल यही होता है कि जितने मसले होते हैं लोग आकर यही उस हुजरों में हल करते हैं, तो इसलिए हम भी इस हुजरों में आकर हम कहते हैं कि लोगों के जितने सवालात हो वो इधर करे और मुख्तलिफ तबके के लोग बैठे हुए हों और वो उसको ये बात क्लियर हो जाए कि ये एक प्रोपेगेंडे हो रहे हैं और ये कुछ भी नहीं इस तरह पोलियो के खिलाफ। पिश्तखर के रिहायशी मलक आसिफुल्लाह का कहना है कि सोशल मीडिया ने उन्हें वैक्सीनेशन से बदजन कर दिया था। फेसबुक पे खबर चलाई थी और लोग परेशानी में निकले थे अपने बच्चों की खातिर, तो इंशाल्लाह से वो बिल्कुल झूठ था, तो इंशाल्लाह वो तो बिल्कुल वो खदशात बिल्कुल ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह अब लोग राज़ी है और ये अपने बच्चों के लिए सब अच्छा करने के लिए तैयार है। पोलियो मुहिम को मुअस्सर बनाने के लिए उलमा और मजहबी शख्सियात की खिदमत भी ली जा रही हैं। मौलाना इलियास को उम्मीद है कि उनके पैगाम का दिसंबर में शुरू होने वाले पोलियो मुहिम पर मुस्बत असर होगा। हम जो मस्जिद में खुतबा पढ़ाते और लोगों को ये कह दे कि यार 16 दिसंबर को हमारे इन इलाके में पोलियो कैंपेन शुरू होते, तो इन पे फौरन अमल करते कि यार ये मौलाना साहब है। पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त माशुखेल में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 12,000 बच्चे हैं। अब तक तकरीबन 800 बच्चों के वालिदैन उन्हें पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर चुके हैं। ताहम कलीमुल्लाह पर उम्मीद है कि आगाही मुहिम से इन वालिदैन के खदशात भी दूर हो जाएंगे। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। टेक्नोलॉजी की दुनिया मादनियात के बगैर नहीं चल सकती। रेयर अर्थ कहलाने वाले मादनी ज़रे हमारे मोबाइल फ़ोन से लेके फाइटर जेट्स तक में इस्तेमाल होते हैं। इन कीमती ज़रात की बैनुल-अक़वामी तिजारत अमेरिका और चीन की तजारती जंग से खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तहकीक से पता चला है कि ज़मीन में मौजूद कानों से निकलने वाला आलूदा पानी भी इन कीमती धातों का एक गैर मुतवक्का ज़रिया हो सकता है। वेस्ट वर्जीनिया के तकरीबन 4000 किलोमीटर धारे आलूदगी से जर्द हैं। इसे एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं। आसपास की तमाम रेत नारंगी हो गई है। इनका कहना है कि इस इलाके में कोयले की पुरानी कानों से पानी बहने से नदियों का रंग बदला है। ये सिरके की तरह तेजाबियत का हामिल है और इससे मछली और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। 100% fatal. 100% मोहलक, ये बहुत ही बुरा है। It's bad. ज़िकविश 30 साल से तेजाबी नदियों की सफाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि इसके हल से एक गैर मुतवक्के फायदा भी मिल सकता है। जब आप कानों से आने वाली इस आलूदगी को साफ करते हैं तो इस कीमियाई अमल के दौरान धातें पानी से अलग हो जाती हैं। इससे कीचड़ सा बन जाता है जिसे स्लज कहा जाता है। पता ये चला है कि इसमें कीमती धातें भी मौजूद होती हैं। टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फोन्स इन्हीं कीमती मादनियात के सहारे चल रहे हैं जिन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। अगर आपके सेल फोन में रवायती लोहे का मकनातीस हो तो आपका सेल फोन ईंट की तरह वजनी होगा। इन मादनियात से आप चीज को छोटा बना सकते हैं। लड़ाका तैयारे, नाइट विजन गेयर और दीगर फौजी हार्डवेयर रेयर अर्थ मंजिल के ज़रात पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन अमेरिका में इन कीमती धातों की ज्यादातर सप्लाई चीन से आती है और जब दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती जंग जारी है तो मादनियात की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। इनको हासिल करने के लिए बहुत बड़ी मिकदार में पत्थरों को पीसना पड़ता है। बुनियादी तौर पर कुदरत आपके वो मुफ्त काम कर रही है जिसमें आपका बहुत वक्त और पैसा लगता है। ज़िकविश इनके साथियों ने जमीन के नायाब अनासिर को आलूदा नदियों से पाक करने का एक तरीका बनाया है।
ये मुसलसल इन नायाब ज़रात को अलहदा करता है और बेकार मवाद पीछे छोड़ देता है। महकमा तवानाई ने इनकी लैब को एसिड माइन ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए $50 लाख दिए हैं। स्टीव बैरगोना के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आज जाने से पहले मिलते हैं अमेरिका में ही मुकीम एक पाकिस्तानी से जो अपने रेस्टोरेंट के जरिए रोजाना नादार अफराद को मुफ्त खाना खिलाता है। वाशिंगटन के एक रेस्टोरेंट के मालिक काजी मन्नान कहते हैं कि वो अब तक तकरीबन 80,000 मरतबा मुफ्त खाना खिला चुके हैं, लेकिन उनका कारोबार घाटे में नहीं जा रहा। उनकी कहानी सोशल मीडिया पे तो करोड़ों बार देखी जा चुकी है। आज आप भी देखिए। व्हाइट हाउस से कुछ ही दूर इस आम से नजर आने वाले रेस्टोरेंट में हर रोज कुछ गैर मामूली होता है। पाकिस्तानी तारिक वतन काजी मन्नान हर जरूरतमंद को मुफ्त खाना देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान होने के नाते ये इस्लामी उसूलों पर अमल करने का उनका तरीका है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे इस अमल से मेरा रब मुझसे खुश है, क्योंकि मैं ये पूरे खुलूस से दिल और नेक नियति से करता हूँ, बगैर किसी मुनाफे के और किसी भी पहचान के, ताकि ये लोग बेहतर महसूस कर सके। मैं सिर्फ खुदा को खुश करना चाहता हूँ। मनान इसलिए भी जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में गुर्बत और भूख के साथ पले बढ़े। जब आप गरीब होते हैं और आपके पास इतनी चीजें नहीं होती जो दूसरों के पास होती हैं, तो फिर जब वो आपको मिलती हैं तो आप इनके लिए खुदा का शुक्रगुजार होना चाहते हैं और इन्हें दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। मनान के रेस्टोरेंट सकीना हलाल ग्रिल का नाम उनकी वालिदा के नाम पर है। वो कहते हैं यहाँ सबके साथ एक खानदान की तरह बर्ताव किया जाता है। मशील और लसौर पिछले 8 साल से यहाँ रोजाना खाना खाने आते हैं। मुझे लगता है कि ये एक फरिश्ता है। ये खूबसूरत आदमी और बहुत मददगार है। मैं खाने की तलाश में था और मेरे पेट से भूख की वजह से आवाजें आ रही थी। मैं इसी नेमत की तलाश में था कि ये नमूदार हुआ, अपना विजिटिंग कार्ड दिया और मुझे अपने रेस्टोरेंट में खाने को बुलाया। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं तब से यहाँ आ रहा हूँ। एक भी यहाँ रोज आते हैं। ये खाने से ज्यादा की बात है। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे इतना खाना दे दिया जाता है जो सारे दिन के लिए काफी हो। खाना बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं। मुझे यहाँ काम करने में भी कोई एतराज नहीं होगा। मनान का अंदाजा है कि 2013 में रेस्टोरेंट खुलने के बाद से अब तक उन्होंने 80,000 से जायद बार मुफ्त खाना खिलाया है, लेकिन उनका कारोबार पैसे देकर खाना खिलाने वालों के सहारे चलता है। इनमें से बहुत से ग्राहक मुफ्त खाना मुहैया करने के लिए अपना हिस्सा भी डालते हैं। जेरेलिन नेथी एवंस रियासत मिनेसोटा से पहली बार यहाँ आई हैं। ये अपनी जात से बढ़कर किसी चीज का हिस्सा बनने की बात है। मैं और मेरा बेटा इस अजीम मकसद का छोटा सा हिस्सा बनने के लिए आज यहाँ खाना खाने आए हैं। दूसरों की खुशहाली में मेरे लिए बहुत खुशी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रंग मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हम सब इंसान हैं। मैं इंसानियत पर तवज्जो दे रहा हूँ। मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ। यही मेरा मिशन है। जूली तबो के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस इंस्पायरिंग कहानी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। शो में शामिल कोई भी रिपोर्ट अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आप हमें अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa और इंस्टाग्राम पे आप उर्दू वीओ को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर मिलेंगी और हम आपके लिए भी बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं। बस अपना फोन उठाइए, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की एक अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए @urduvoa के हैशटैग के साथ। इजाजत दीजिए सारा जमान को, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।